Okay, so welcome all of you all for our seminar of time management. So let's start with the definition of time. So let me ask, what's the definition of time, Mataji? महानुभाव को पूछ रहे हैं. With time we grow old, it takes away the life. What is the definition of time? Yes, कोई ट्राई करना चाहेगा? Definition of time. One which is gone and can never come back. One that is the one of the feature or characteristic feature of time. That is not the definition of time. Yes, Mata, you would like to try? Definition of time. क्या लगता है? Come on fast. It is time is the movement from the past to the present to the future. Simple definition. There is no complication. Before one split second, there was a past. Let's say now it's 6:45. 6:44 is past. 6:45 is the time, actual time, and 6:46 is going to be future. So that is the definition of time. And time I have mentioned in the poster as a resource. So we are going to discuss a lot about how it is a resource. Resource का मतलब क्या है? Let's say, what's the Hindi word for resource? Stroth. Okay. So, no, not origin. It's not origin. Resource means Sanshodhan. Okay. Sansadhan. Okay. Forgive me for my bad Hindi. So again, Sansadhan. Yeah, I think that's the right word. कि that's something which you can use. उसको यूज़ कर सकते. जैसे आपके लिए अगर कोई बच्चा एग्जाम लिखने जा रहा है तो उसके लिए रिसोर्स क्या है? पेन, पेपर, पेन. चलो पेपर तो कॉलेज या स्कूल दे देती है, बट पेन तो लेके जाना पड़ेगा. सो बट दैट इज अ रिसोर्स. वो पेन से पेपर में जस्ट स्क्रिबल करके आ सकता है या उसमें आंसर लिख भी सकता है. अच्छा, सही भी लिख सकता है, गलत भी लिख सकता है, बट यू नीड अ रिसोर्स. सो दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. सो a resource is something that can be used for making profit or benefits, जिससे आपको कुछ फायदा मिले. That is the first or clear understanding of resource. Please understand, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि how this is an important resource. अब हम सबके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस हैं. सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? पैसा. With money you can do something or the other, so you need money. So but this resource is a variable. Why it's variable? किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास कम है, बट पैसा है. रिसोर्स सबके पास है, बट इट इज ए वेरिएंट वन. But time is not a variant, it is constant. करोड़पति के लिए भी 24 hours, गरीब के लिए भी 24 hours. It's not a variant. Whereas for a करोड़पति, crore may be a small resource for him, but for a poor person, crore may be a big resource for him. So money is a variant, whereas time is fixed. Please understand, this resource is very very important. Second, चलो आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो या काम पे जा रहे हो, ऑफिस पे जा रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ क्या ज़रूरत है? शरीर. You need a body to be fit to go to office. Again, this is also a variant resource. 10 साल पहले जो शरीर था आज वो नहीं है, और 10 साल बाद वो शरीर नहीं रहेगा. So what is a fixed resource again? Time is a fixed resource, but rest resources are variant. Some people may have a nice health, some may have a poor health. किसी का some health issues may be there with someone, it may not be there with someone else. Hence time is an important and one of the fixed resources.
The best part of other resources is it is not in our control. That's another important factor of time. For example, क्या आप तय कर सकते हो मेरे पास इतना पैसा होना ही चाहिए या मेरा हेल्थ ऐसा ही होना चाहिए? Everyone gets up in the morning, goes for walking. Every lady running, can she think she is PT Usha or she is Mary Kom? राइट पूरे इंडिया में कुछ ही लोग गुड क्रिकेटर बनते हैं, कुछ ही लोग अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं. क्यों एवरीवन डजंट बिकम? व्हाई? दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल. वी कैन ट्राई. आप कोशिश जरूर कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एकदम पतला सा मरियल सा आदमी है, वो रोज सुबह घी खाए, दूध पिए, जलेबी खाए, सब खाए और जिम में भी जाए, दंड बैठक मारे, सब करे, फिर भी कैन ही गारंटीडली बिकम अ रेसलर? उसकी इच्छा है कि वो कुश्ती लड़े, पहलवान बने, क्या वो बन सकता है? सो दीज रिसोर्सेस आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट टाइम is in your control. At the same time, time is not in your control. That is the speciality of time. आप वक्त के अधीन हो, you are in control of time. At the same time, you are in control of time. How? For example, today evening you want to enjoy. आज चलते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, या let's go to a restaurant or let's go for a movie, anywhere. So when that decision is taken, time is in your control. Mind you, time is not saying नहीं चलो मंदिर चलो, नहीं पढ़ाई करो. You can opt, आज शाम को नहीं पढ़ता हूँ, आज अभी 1 घंटा में पढ़ाई नहीं करूँगा, टीवी देखूँगा या मटर गश्ती करूँगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, whatever it may be. So you are in control of your time, but at the same time, time is in control of you. So of all the resources and factors which are there in your life, time is unique and different. It's very powerful. Few of the attributes of time. One attribute which is the most first important attribute, but that I will discuss later on. It is eternal. कभी रुकता नहीं. शरीर मौत के वक्त रुक जाएगा. पैसा कभी खाली भी हो सकता है, एकदम ज़्यादा भी हो सकता है, बट दिस इज ऑलवेज ट्रिकलिंग. इसके लिए पहले एक ज़माने में एक सैंड क्लॉक आता था, पता है? व्हाट डज दैट मीन? हाँ, आर ग्लास. ओके, व्हाट डज इट सिग्निफाई? दैट टाइम इज गोइंग फास्ट, इट इज मूविंग, इट्स कंटिन्यूसली मूविंग, कभी भी रुका नहीं है. So this is the first understanding of time. It trickles at the same pace for everyone. किसी को ज़्यादा, किसी को कम, not possible. अभी आपका एक दिन कट गया, तो क्या एक रिच मिलियनर है, ट्रिलियनर है, उसके लिए आधा दिन ही कटा क्या? उसके लिए भी एक दिन कट गया. So this is trickling with the same speed for everyone. Is it not? Now when we are talking, are we talking of only humans or is it for animals, birds, everyone? Everyone. So here, before I go ahead for the new invitees, I would like to ask this question. What is the difference between human beings and animals? मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? हाँ, इतना अंडरस्टैंड थिंग्स कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अच्छा खूबसूरत फोटो भी डाला है, फिर भी ड्रिंक एंड ड्राइव डेंजरस, फिर भी इतना इंटेलिजेंस की क्या फायदा? व्हाट इज यूज ऑफ दैट इंटेलिजेंस व्हेन नोइंगली पीपल कमिट फूलिश एक्टिविटीज? और उसका नाम भी देते हैं एंड में, खुद खुशी. मेरी खुद की खुशी है और खुद खुशी करते हैं. इंटेलिजेंट, दैट्स नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस. यस प्रभु, व्हाट डू यू थिंक?
difference between human beings and animals. Come on, fast, 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 fast. All of you are ready. Follow. क्या बोले? They have sense. You mean to say humans don't have sense? Then what way are you trying to demarcate it? I mean, in what way you think they have got senses? Yes, what do you feel? Difference between human beings and animals? They can wear dresses, or we can wear dresses. They can't wear dresses. What is the thing? आगे आइए. Tell me. Sort problems. Okay. By the way, what is the definition of problem? It's I like, because I want it to be interactive. आप ready रहना next answer के लिए. हाँ. जो कष्ट दे. अबे आप शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, 10 साल बाद कैंसर आएगा. ये प्रॉब्लम किसका है? किसने खड़ा किया? 90% of the problems are created by ourselves. 90% is created by ourselves. Only 10% are that come in the large category of आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक. 3 कैटेगरी है प्रॉब्लम्स के. शास्त्र कहता है जिस दिन वो समझ जाओगे ना, आदमी कैन प्ले वेरी सेफली इन दिस लाइफ. क्या है? आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक. 3 क्लेश है. क्या है आदिदेविक? मतलब प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक. ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है. सो दिस इज आदिदेविक. आदि भौतिक क्रिएटेड बाय अदर लिविंग एंटिटीज. जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा, आपका कभी कभी कैन बी योर बॉस, इट कैन बी योर एम्प्लॉय, it may be it can be your neighbor also. And it is always said you can throw your son out of your house, but you can't throw your neighbor out of his house, and he will always trouble you. So this is all called as आदि भौतिक. Sometimes कुछ नहीं तो एक मच्छर आपको सताएगा. कोई नहीं सता रहा है तो मच्छर सता रहा है, तो वो भी आदि भौतिक है. कोई और जीव जंतु आपको सता रहा है. एंड लास्ट इज आध्यात्मिक. आध्यात्मिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ आवर माइंड. व्हाट इज प्रॉब्लम इन आवर माइंड? हाँ, आवर डिजायर्स नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ना. उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. That's not a problem. But this is always existing. अरे उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, वो नहीं है. Everyone wants to run a race. So ये प्रॉब्लम सबके पास है, मगर this is all perennial problem. ये चलते रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. But last but not the least, please understand, अगर कोई व्यक्ति जान ले कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स के अलावा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो भी गलत है. और वो प्रॉब्लम्स क्या है थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. नाउ लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द डिस्कशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. यस माता जी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स? मतलब वो लोग समाज में नहीं रहते जैसे हम लोग सामाजिक रहते हैं. माता जी, शेर अकेला घूमता है मगर लोमड़ी झुंड में घूमती है. पक्षियाँ झुंड में उड़ती हैं, तो वो ज़्यादा सामाजिक हैं. यस प्रभु, आपको क्या लगता है? प्रभु जी, ये उनमें अध्यात्म की शक्ति नहीं रहती. वेरी गुड. वही एक चीज अलग है पशुओं में नहीं है जो इंसानों में है. कैन द एनिमल्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिक चीजें के बारे में सोच सकते हैं? मनुष्य सोच सकता है. दैट इज वॉट मेक्स ए ह्यूमन बीइंग स्पेशल एंड डिफरेंट. अदरवाइज फर्स्ट क्लास, टू लेग्ड, द्विपादीय,
पशु, शर्ट पैंट सूट बूट पहनने वाला पशु या ड्रेस पहनने वाला पशु। कहते हैं 4 चीज कॉमन है इंसान में और जानवर में। क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आप भी खाते हो, जानवर भी खाता है। फर्क क्या है? वो बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खाता है, गली कुत्ते रोड में या जंगल में खाएगा। इंसान बढ़िया रेस्टोरेंट, एसी रेस्टोरेंट में या डाइनिंग टेबल में बैठ के फोर्क एंड स्पून के साथ खा रहा है, मगर खा दोनों रहे हैं। स्लीपिंग, दोनों सो रहे हैं, एक एसी बेडरूम में सो रहा है और एक रास्ते में सो रहा है, बट सोता दोनों है। मेटिंग, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हमसे बेहतर करते हैं। आपको पता है, जानवर हमसे बेहतर बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ माँ बाप को अगर आजकल एक दूसरा बच्चा बस कांट अफोर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ आई गो एंड हिट यू, अगर मैं आपको मारने आऊं तो आप आपका बचाव करोगे कि नहीं करोगे? और अगर जानवर को भी जाके, कुत्ते को जाके लात मारो, 2 पॉसिबल है, बचाव 2 तरीके से करेगा। या तो अगर मैं कमजोर था या हूं तो आप मुझे आके मारोगे, और अगर मैं ताकतवर हूं तो आप भाग जाओगे। कुत्ता भी वही करता है, जब लात मारते हो या तो काट खाएगा या तो रोते रोते भाग जाएगा। सो दीज आर द 4 थिंग्स कॉमन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। सो व्हाट मेक्स यू स्पेशल? धर्म अधिक विशेषो, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज पशु भिन्न समान, पशु और इंसान में कॉमन। सो व्हाट मेक्स यू स्पेशल? इट इज ओनली एंड ओनली धर्म अधिक विशेषो। So this is the first thing, but time is trickling for both human beings and animals. But एक जानवर ये नहीं जानता है कि अरे आज मेरे जीवन का एक दिन खत्म हो गया। He cannot count. कुत्ता ये नहीं सोचता अरे आज का एक दिन खत्म हो गया, मैंने क्या किया। बट एक लेट्स से बिजनेसमैन है, वो सोचेगा अरे आज का दिन में कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाया, या आज मैंने बहुत अच्छा कमा लिया। 2 पॉसिबिलिटीज आते हैं, अच्छा कमा लिया या मैंने नहीं कमाया। सो ही कैन थिंक आज का दिन का नुकसान या फायदा, बट एक जानवर कभी ये नहीं सोच सकता आज का दिन का नुकसान या फायदा क्या है। सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, फैक्टर इज द सेम, टाइम इज द सेम फैक्टर। और हर चीज आप सोचोगे तब तुरंत नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग में कहावत है, अगर कोई लेडी को बच्चा नहीं होता हो तो क्या करेगा? लेडी क्या करती है? अक्सर पीपल का पेड़ का प्रदक्षिणा करते हैं। और साउथ इंडियंस में एक बहुत कॉमन कहावत है कि कोई औरत मतलब बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने तुरंत, उसके गुरुजी ने बोला कि आप पीपल का पेड़ का प्रदक्षिणा करो, तो उसने जाके प्रदक्षिणा किया और आके चेक किया कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी, कहीं मेरा पेट बड़ा तो नहीं हो गया, कहीं मुझे बच्चा तो नहीं हो गया। अरे भाई 10 महीना रुकना पड़ेगा, उसके लिए भी 8-9 महीना रुकना पड़ेगा। तो टाइम इज अगेन एज आई टोल्ड यू, समटाइम्स टाइम इज इन योर कंट्रोल, समटाइम्स यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम। यू कांट से I want a child, tomorrow I can get it. No, you have to wait for that duration. Very important message, especially for youngsters. Let's say you miss a chance of proposing someone. Let's say you miss a chance of proposing someone. वापस वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी है? So what does this mean? We are interested only in one part of the statement. We are never seeing the other side of the statement. एक वक्त पे अगर प्रपोज कर दिया तो ठीक है, हाँ या ना जो भी हो कुछ तो जवाब आएगा, मगर वक्त अगर छूट जाता है एंड देन इट्स लाइक, कहते हैं ना सांप निकल गया और लकीर पे लाठी मारते रह गए। सो यूज द टाइम करेक्टली। करेंगे, फुर्सत में करेंगे, क्या जल्दी है।
इट हैज टू बी राइट टाइम, राइट चीज करने में ही फायदा है. सो दिस आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम. सो टू नो हाउ डियर टाइम इज, समय कितना करीब है या कितना भारी है, व्हाट इज द मोस्ट डियर थिंग, वैल्यूएबल थिंग, यू विल अंडरस्टैंड दिस. जब 1 साल की कीमत जानना है ना, तो किससे पता चलता है? जो लड़का फेल हो जाता है ना, a child who fails, he understands the importance of or the value of 1 year. Otherwise it's very difficult. 1 month. Go and ask a mother who has delivered a premature child by 1 month. That lady will tell you the value of time. 1 महीना पहले अगर बच्चा पैदा हो गया, कितना हाहाकार मच जाएगा. It's a pathetic condition. 1 week, 1 हफ्ते की कीमत किसको पता चलता है? When you go and ask a person who knows he has only 1 week of life left, 1 हफ्ते का जीवन बचा है उसके पास, उस व्यक्ति को जाके पूछना कितना वैल्यूएबल है तेरे लिए 1 week? How valuable it is? For him it is like मुझे मैक्सिमम यूज करना है. 1 day, 1 दिन का कीमत, वो तो 1 पल का भी पता चल जाता है उसमें तो. 1 day is, go and ask one laborer जो रोज कुआं खोद के पानी पीता है, जो रोज दिन का मेहनत करके घर चलाता है, उस व्यक्ति के लिए अगर 1 दिन का काम नहीं मिले ना, 1 day he doesn't get a job, he will also tell you the value of 1 day. क्यों? उसके लिए उस दिन घर पे शायद चूल्हा ना चले. 1 minute. Suppose someone is going for an important last flight तो ठीक है, वो तो आजकल जल्दी मत कर रहे हैं. बट ट्रेन, स्पेशली द ट्रेन, 1 minute में ट्रेन मिस हो जाता है व्यक्ति. कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ना? काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है कि ट्रेन मिस हो जाता है. सो इट्स मोस्ट पेनफुल. उस 1 मिनट की कीमत वो व्यक्ति जानता है जिसका ट्रेन छूट गया. 1 second. यस, एथलीट. उससे ज़्यादा एथलीट तो बाद में आएगा. उससे ज़्यादा डेथ. और क्या? एक्सीडेंट. जो एक्सीडेंट से बच जाता है ना, उसको पता चलता है 1 सेकेंड अगर मैं पहले गया होता ना, तो मेरा गाड़ी या मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो जाता. सो 1 second ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. एंड 1/100th of a second और 1/10th of a second पे एथलीट का गोल्ड या सिल्वर डिसाइड होता है. जस्ट इमेजिन, टाइम इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. और हम लोग क्या करते हैं? टाइम पास. अरे भाई, what you are having and you are saying टाइम पास. टाइम पास हो नहीं रहा है. ऊपर से some people say टाइम पास हो नहीं रहा है. भाई, एक ऐसा रिसोर्स है हाथ में which you have to use smartly, sensibly and sparingly also. क्यों? फिक्स्ड है 24.1 सेकेंड भी किसी के पास नहीं. सो टाइम इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स. टाइम इज फ्री, राइट? किसी को कोई पैसा लगता है उसका? टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस. टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस. यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट. कोई पकड़ के नहीं रख सकता है. करोड़पति भी व्यक्ति अगर बोले अरे भगवान मेरा बिग इंडस्ट्रीज कम्स एंड टेल्स मेरे सारा धन ले लो, और यमराज से बोले मुझे 1 मिनट दे दो, बोलेगा पैसा भी तेरा नहीं है, मिनट भी तेरा नहीं, चल लेके जाएगा यमराज, भी आपको लेके जाएगा. सो टाइम इज सो प्रेशियस. सो यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट. You can't keep it, but you can spend it
And last, once you lost it, you will never get it back. So please don't think time is something very, very simple. It's very, very powerful. We'll discuss further what Lord says in the Bhagavad Gita also about time. The worst is, we all don't know how much time we all are left with. कोई गारंटी दे सकता है कल सुबह, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कैन आई गिव अ गारंटी कल सुबह मिलूंगा? दैट वैल्यूबल इज टाइम, बट स्टिल वी वॉन्ट टू डू टाइम पास. अरे कल सुबह जीवन है कि नहीं पता नहीं है, फिर भी टाइम पास करना है. When Buddha was asked, what is the biggest mistake we make in our life? Once Buddha was asked. So what did Buddha say? He replied, the biggest mistake is we think we have time. जल्दी क्या है? You know, I'll tell you a small story. एक बार एक लड़का बहुत आलसी था. You can consider yourself, it's not a problem. So एक लड़का बहुत आलसी था और उसको उसके गुरुजी ने बोला कि भाई इसको कुछ सुधारूंगा मैं, let me see some change in this boy. So what is the best thing I can change, I can see in this boy? उसने बोला ठीक है, मैं अब 2 दिन के लिए जाता हूँ. ये कुछ काम नहीं करता है. हाँ? आप लोग भी ऐसे हैं ना, घर पे मम्मी चिल्लाती रहती है, कपड़े निकालो, ये करो, वो करो. अरे जल्दी क्या है, आराम से. So don't worry, it's a story everywhere. So that's why it's not the story of the lazy boy, it is a story of all of you all. So उसने बोला कि भाई मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ. I will give you one paras money, paras stone. What is paras stone? Gold. Yes. Wow. Who doesn't want it? So मेरे पास एक पारस का पत्थर है, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ. 2 दिन तक जितना हो सके उतना सोना बना लेना. And you touch anything, it will become gold. And 2 दिन के बाद मैं आऊँगा, मैं वो पत्थर अपने पास ले लूँगा. देखे गया, गुरुजी सुबह सुबह निकल गए. लड़का बोला गुरुजी निकल गए, चलो अभी आराम से सोता हूँ थोड़ा देर. ये पारसमणि का कार्यक्रम क्या है, 10 मिनट का तो काम है. ऐसा टच करना है, ऑटोमेटिकली गोल्ड हो जाएगा. जल्दी क्या है, थोड़ी देर बात करता हूँ, पहले सो जाता हूँ थोड़ा. सो गया, थोड़ी देर बाद उठा, भूख लगा, पहले खाने का तो बंदोबस्त कर लो. तो खाने का बंदोबस्त किया, खाने का इतना जबा के खा लिया कि वापस नींद आ गई. आराम किया, सोया, उठा, रात का खाने का बंदोबस्त करना. He started preparing for the dinner. डिनर बनाया, रात को खाया, सो गए. पता नहीं चला 2 दिन बीत गए और शाम को गुरुजी आए. बेटा मैं आ गया हूँ, ला पत्थर दे मुझे. कितना बनाया, किसमें से कितना तूने सोना बनाया, कितने टन सोना बनाया? ना मैंने कुछ सोना बनाया नहीं है एक्चुअली गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी. मैं सोचा मेरे पास टाइम है, मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा. बट भूल गया. इतने में इतना जल्दी वक्त खत्म हो गया कि आप आ गए. तब गुरुजी ने बोला डर मत, ऐसा भी पत्थर, जो पत्थर जो मैंने तुझे दिया था वो पारस का नहीं था, वो साधारण पत्थर था. बट I just wanted you to realize the importance of time. You have wasted an opportunity. Once an opportunity wasted, you will not get a second chance for it. Remember that. So we don't know how much lifespan we all have got. Now, we will understand what is another important definition of time as per शास्त्र. शास्त्र के हिसाब से टाइम का और एक सबसे बड़ा परिचय क्या है? टाइम इज द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ. राइट? दैट्स ऑल द टाइम वी ऑल हैव गॉट. टाइम इज द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ. लेट्स से एन एवरेज, आई एम नॉट टेकिंग इंडिविजुअल केसेस, बट एक एवरेज में 75-80 ईयर्स, इससे ज़्यादा तो कोई व्यक्ति जीता नहीं है आज की तारीख. और अगर जिया भी उसके बाद तो इज लाइक ए वेजिटेबल ऑन द बेड. सो उसमें से 25 साल जीवन के
25 साल आप निकाल देना। किस चीज में गए? 1/3 गॉन, नो? 8 3 8s are 24 आवर्स में से 1/3 goes in sleeping, 8 hours goes away in sleeping. So आपके जीवन के 75 years में से 25 साल निकल गए सोने में। अब बचा कितना? 50. And that is a number which amounts to most 1/3 of your entire life. And 30% of us struggle to sleep also in that. That is statistics. 30% of people have to take गोली to go to sleep. और वो भी 8 घंटा सोना है। डॉक्टर कहते हैं 8 घंटा नहीं सोओगे तो हेल्थ इज बैड। ओके, वी स्पेंड अराउंड 8 years of our life. These are all statistics found by researchers. Around 8 hours of your life, 8 years of your life, you will use in वो बाद में है, पहला बाथरूम, पहला ये इंटरनेट। फर्स्ट इट इज इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, बिजी उसी में। कितना जगह है आपका जीवन का? 8 साल गॉन। 4 साल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। 4 years, about 4 years of your life, of 2 years of your life goes in personal care and grooming. बाल करोगे, नहाओगे, सब करोगे ना। 2 years हम लोग कम, आई एम गिविंग ऑन द लोअर साइड ताकि आपको पता चले कितना आपके पास टाइम मैनेजमेंट है ना। लेक्चर इज ऑन टाइम मैनेजमेंट, तो आपको पता चलना चाहिए ना कितना टाइम है आपके उनके पास। सो 2 years shopping. You know that 2 years of your life is gone just shopping. 2 years means I'm talking 24 hours. यहाँ कैसा 2 साल 24 आवर्स आप अगर काम, उतना टाइम जो है उतना टाइम में आप सिर्फ शॉपिंग करते हो। हाँ, मॉल में जितना देर खड़ा रह के पैर तोड़ा वो अलग। दिस इज एक्चुअल शॉपिंग टाइम। ओके, देन 1 year इन चाइल्ड केयर। जीवन का 1 साल जो है वो चाइल्ड केयर के लिए निकाल दो। 1 to 1.5 years इन ट्रैवलिंग। बॉम्बे वाले का हिस्सा नहीं गिना यहाँ पे कोई भी मेट्रो वाले का मैं यहाँ गिना नहीं है, कोई भी मेट्रो सिटी वाले का यहाँ गिन नहीं रहा हूँ, जस्ट जनरली बोल रहा हूँ। 1 से 1.5 साल ट्रैवलिंग, 4 साल इन ऑल अदर कोर्स ऑफ योर लाइफ। दैट इज आपका नहाना धोना, देन गेस्ट को एंटरटेन करना, यू नो ऑल द अदर थिंग्स। एंड 10 years उसमें आपका लास्ट 10 years इन वर्किंग। वाई आई एम टेकिंग 10 years? People say, sir, I work for 30 years. नहीं, you are not working for 30 years. You work for 8 hours an average. So उस हिसाब से मैं 10 years आपका जीवन का मतलब मैं 24 घंटे के हिसाब से गिन रहा हूँ। So अब बचा क्या आपके पास? 15 साल, 10 to 15 years max। अगर 80 years तक रुकते हो तो 15 साल, और 75 है तो 10 साल बचा आपके पास। So how you are going to spend that? The balance 10 to 15 years of your life. क्या करना चाहोगे? ये सब मजबूरी है, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, दांत घासना पड़ेगा, इसमें हमें टाइम जाता है। फिर आपका क्या बोलते हैं, ग्रूमिंग, देन एजुकेशन, कड़ी से चाइल्ड केयर, एंड यू नो डेली कोर्स ऑफ योर ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा। कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है या काम पे जाना है, ट्रैवल तो करना पड़ेगा। सो यू आर गोइंग टू लूज एनी हाउ, दीज मेनी ईयर्स आर फिक्स्ड टू गो। सो इन 10-15 years you have to buy a house, buy a car or some transport vehicle, get married, dangerous thing, and then educating your child, ये सब भी करना है आपको, and arrange for your old age. 80 years gone, right? तो जीवन कैसा गया? इसके लिए ना मेनी पीपल है, आस्क एनी एल्डरली पर्सन, कोई जो 50-60 के आसपास हो, आप उसको पूछना कैसा लगता है जीवन कितना जल्दी गया।
ऐसा लगता है कल ही कॉलेज में था, कल ही स्कूल में था, कल ही शादी हुआ, अभी आ गया रेमराज भी आके खड़ा है सामने. That's how time is flying. If you see each even आपका जीवन, आपका खुद का जीवन देख लोगे, इवन यू यंगस्टर्स, ऐसा लगेगा अरे कल तो स्कूल जा रहे थे, अब तो स्कूल भी खत्म हो गया, कॉलेज पे आ गए, कॉलेज भी खत्म हो गया, अभी जॉब पे आ गया. टाइम इज सो फास्ट गोइंग, यू रियलाइज इट, बट स्टिल बहुत टाइम पास करते हैं. हाउ कैन समवन थिंक अबाउट टाइम पास व्हेन हिज शेड्यूल इज सो टाइट? This is fixed, rich or poor, young or old. Yes, this is for an 75-year-old person. This is the time schedule given for a lifespan of 75 years. इसमें आप कहाँ से आप कुछ और कार्यक्रम करने के लिए बारे में सोच भी सकते हो क्या? Can you ever think? So, Shastra says time management is very important. It's not only a new modern age word. Time management is required for every individual. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कल परीक्षा आ जाए तो आप स्टूडेंट्स कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो ना? मैं सुबह जल्दी उठेगा, जल्दी सोएगा, या कभी खेलने नहीं जाऊंगा, जिम नहीं जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा. यू आर प्लानिंग योर सेल्फ. नाउ वी आर लर्न टू थिंग्स. वन इज यस, अगर मैं मनुष्य हूं तो मुझे भक्ति करना है, बट भक्ति क्यों करना है? नाउ बिगर क्वेश्चन इज भक्ति क्यों करना है? प्रभु जी ने सही बोला, धर्म अधिक विशेष हो. धर्म एक एक्स्ट्रा चीज है जो मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता. तो मगर करना क्यों? इतना जैम पैक शेड्यूल है अपना. तो व्हाई शुड वी डू एंड हाउ शुड वी डू एंड व्हाई शुड वी डू? व्हाट इज द बेनिफिट? जय माता जी, आपको क्या लगता है हमको क्यों भक्ति करना चाहिए? इतना जैम पैक शेड्यूल है. और सही है कि गलत है? आप जीवन कितना देख चुके हो, यू आर रिटायर्ड राइट, सो यू हैव ऑल्सो सीन, सो मोर और लेस दिस टाइम टेबल इज फिटिंग राइट इन योर लाइफ ऑल्सो. आपके जीवन में सही बैठ रहा है, तो भक्ति क्यों करना चाहिए? जय प्रभु, आपको लगता है भक्ति करना चाहिए? क्यों? शांति. जीवन तो जैम पैक्ड है, और ऐसा भी शांति हो ना हो एंड में तो हाँ. डोंट वरी प्रभु, आप ही नहीं, कई सारे लोग इस सवाल का जवाब देते देते रुक जाते हैं, क्योंकि उसका सही मायना लोग समझते नहीं. नाउ शास्त्र सेस, शास्त्र कहता है हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है. ये जो टाइम टेबल दिया वो तो शरीर का था, आत्मा का तो टाइम टेबल दिया नहीं ना मैंने. द शेड्यूल व्हाट आई हैव शोन यू राइट नाउ, इट्स ट्रू फैक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग. दिस इज द शेड्यूल, दिस इज एन एवरेज शेड्यूल. Now if you go and ask someone who is working, like a daily laborer who is working so hard, उसके लिए आप अगर दिखने जाओगे तो ये शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. उसके लिए ईटिंग ओनली 2 years और 1.5 years और 2 years, बिकॉज उसके पास उतना वक्त नहीं है, या उतना खाने को है भी नहीं है खाने के लिए उसके पास. Might be for a rich person, might be his working time may be less and his eating and enjoying travel time may be more. So this what I gave was an average breakup, but this entire breakup is for the body. ये शरीर जो है, जो बच्चा एक 7.5 किलो का बच्चा जब जीवन शुरू करता है, we all were born as small kids, बढ़ते 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 अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और कब ज़्यादा बढ़ने के लिए उम्मीद नहीं है. हर कोई व्यक्ति क्या सोचता है? You go to gym? No. Who goes to gym by the way? Nobody goes to gym. No one is body conscious also. Time conscious नहीं है, body conscious नहीं है. Okay, you go to the gym. Very nice. So what do you desire? 6-pack? 6-pack, don't worry. You may desire for 6-pack. You will land up with a family pack only. Don't worry. In the end, you will land up with a family pack only. So don't worry about that. The point is, this timetable is only for a
body. But we are not the body. We are a spirit soul. So जो शांति आप लोग जो बोल रहे हैं ना, that is what is required for the soul. हम जीवन में जो भी चीज के लिए भाग रहे हो, किस चीज के लिए भाग रहे हैं? अच्छा जीवन जीने के लिए. अच्छा जीवन मतलब एसी, कार, बढ़िया भोजन, बढ़िया सोना, एवरीथिंग हाई क्लास. मतलब जो प्राणी करता है, जानवर करता है, वही चीज मनुष्य भी करता है, बट इन ए सोफिस्टिकेटेड मैनर. What an animal does, the same thing a human is also doing, but the difference is sophisticated. प्लेट में लग के खाना अच्छा ड्रेसिंग करके सजा के खाता है. जानवर कैसा एकदम टूट पड़ के खा लेता है, बट इंसान क्या करता है? उसको नाइस, यू ड्रेस अप द वॉट एवर द डिशेस and then you eat it in nice style. You may add some taste makers to that, or you call up for the nice tasty food, whatever is good for your tongue. But the bottom line is, all what humans are doing, animals are also doing the same thing. Only thing is we are doing it in a sophisticated manner. बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है. But again, ये इतना सब करने के बाद क्यों अपना शरीर को आपने बढ़िया रखा, बढ़िया खाना खिलाया, फिर भी आज एक 60-70 साल के व्यक्ति को जाके पूछ लेना, आर यू हैप्पी? वो क्या कहता है? शांति नहीं मिला. और कितना टन खाना खाया मालूम है? एवरेज 1 person eats 1 kilo a day. 250 grams easily. मैं अच्छा मतलब कोई लोग ऐसा भी खाते हैं, मतलब प्लेट में ऐसा भी रहता है खाना, मैं उनका मैं बात नहीं कर रहा हूँ. एक एवरेज व्यक्ति 1 किलो खाना फुल डे में खाता है. तो मतलब 365 डेज कितना किलो खाया? 365 किलो. इजी मैथ्स. 50 साल में, अच्छा एक साल में दिस इन 1 year 365 kilos into 50 years. How many tons it is? निकालो कैलकुलेटर निकाल के चेक करो. कैलकुलेटेड 20 टन अप्रॉक्सीमेटली 20 टन्स. ये 50 साल तक. 50 साल तक. मैं क्यों इसको 50 तक इतना एवरेज बोल रहा हूँ? 1 किलो बचपन में शायद कम खाया रहेंगे और जवानी में उसका कॉम्पनसेट कर लेते हैं. जवानी में कॉम्पनसेट कर लेते हैं. तो हाउ मेनी 20 टन्स ऑफ फूड. एक व्यक्ति ने 20 टन खाना खाया है, फिर भी उसको जाके पूछ लो 50 साल की उम्र में, आपको खुश हो, शांति है? नहीं, दिल मांगे मोर, और कुछ चाहिए, प्लीज गेट मी समथिंग न्यू. इसके लिए हमारा हालत यही है ना, होटल में बैठ के खा रहे हैं, बढ़िया डिश खा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम है ना वो होटल में जाते हैं, खाओ ना, इधर खाओ ना, गपचुप खा के पेट भरो ना. नहीं, पेट इससे भर रहा है बट माइंड नहीं भर रहा है. माइंड क्या बोल रहा है? चलो नेक्स्ट टाइम वहां जाके खाएं, वहां सुना बहुत अच्छा है. अच्छा नेक्स्ट टाइम फिर वहां कुत्ते की तरह है इधर से वहां तक जाओगे. यू नो आई हैव सीन, यू नो, व्हेन आई वाज इन माय बिजनेस डेज, आई स्टिल रिमेंबर my clients used to come. I'm talking of way back in the 90s. That time our Shiv Sagar was very famous. Pav Bhaji and Kanjiram Idli and Faluda was supposed to be one of the best delicacies. Few of my clients used to come all the way from Charni Road to Parla to just have this food. And few nuts used to go from Parla to Ghatkopar to eat that Pav Bhaji or something. There was some Khau Gali or something was that. It was very famous. The point what I'm trying to make is, for our fulfilling our senses, we run from one end of the city to the other end of the city and then to decide, नहीं next time किधर और खाते, अरे फिर इतना मेहनत क्यों, पापड़ क्यों मिला इधर आके खाने के लिए. But after all that, after consuming 20 tons of food, you know 20 tons of food कितना होता है? आप गोडाउन में जाके चेक करना, 20 टन फूड किसको कहते हैं? और इतना खाने के बाद क्या कहता है व्यक्ति? शांति नहीं.
शांति कहाँ से आएगा? आप खिला किसको रहे हो? शरीर को। और शांति किसको चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए, और उसके लिए कुछ खिलाया नहीं। Am I making sense or not? Are you able to get this point or not? It is like there's a car and a car driver. Car is compared to this body. Eyes are like headlight. Mouth is like a horn. पी पी बजते रहते हैं. हाँ? तो car and body is a simile or a comparison. Similarly, you compare your soul with the driver. Soul is compared to the driver. जब तक सोल शरीर में है, यानी कि जब तक ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चलती है. The minute the driver gets out of the car stops. Right? Same way, मतलब उसको stops मतलब आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, आदमी को क्या बोलते हैं? मर गया. Now let's imagine, आपने गाड़ी लेके गए पेट्रोल पंप पे, बोला टैंक फुल करो, टैंक फुल किया, और वो पेट्रोल पंप वाला आके आता है, साहब मुंह खोलो. क्यों? 5 लीटर पेट्रोल आपके मुंह में भी भरता हूँ, चलेगा? आप क्या बोलोगे? गधे, मैं थोड़ी ये सब खाता हूँ, मैं तो मस्त बढ़िया चाइनीज मोमो ये वो सब खाता हूँ. आई डोंट ईट पेट्रोल, राइट? आई डोंट ड्रिंक पेट्रोल. ठीक है. वहाँ से आप गए, एक रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर किया, वेटर ने आपको खाना दिया, बोला सर आपकी गाड़ी की चाबी देना. बोला क्यों? नहीं, आपके गाड़ी के टंकी में कुछ दाल डाल देता हूँ, काफ़ी दाल बचा है, हमारा होटल की तरफ कॉम्प्लीमेंट्री है, थोड़ा दाल डाल देते हैं हम लोग गाड़ी के पेट्रोल टैंक में, चलेगा? आप क्या बोलोगे? उसका खाना पेट्रोल है, मेरा खाना दाल चावल है, या जो भी हो, मतलब वॉट एवर द फूड इज. सो द पॉइंट इज, सोल के लिए खाना अलग है, शरीर के लिए खाना अलग है. शरीर के लिए जो भी आप खा रहे हो, जो भी आपको अमेजॉन, स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, जो भी आप बोलिए ऑनलाइन मंगाना है, मंगाओ. आत्मा के लिए एक चीज़ है क्या जो मंगा सकते हो? फिर भी दिन भर बाई चांस कुछ चीज़ आ गया तो जिससे मेरे को शांति मिले, खुशी मिले. आई हैव सीन पीपल, लिटरली आफ्टर दैट ऐप हैज कम ना, people keep on scrolling the Amazon and Flipkart app, just ऐसे ही, कुछ लेना नहीं है. They're searching inside that happiness, same happiness inside that. So please understand, you have to decide wisely. So time management has the ability to use the time effectively, be productive, and accomplish not only your daily tasks but something larger. So must, I want to ask you one question before we go ahead. My question is, what is your goal of life? Don't worry, I have not asked you a rocket question. Yes bro, what's your goal of life? Being a businessman. Very good, nice, that's a good goal. And then उसके बाद क्या करो? One day you become. बाद में क्या करो? अच्छी बात है. बाद में फिर आएगा क्या? राइट? उसको पाने के बाद क्या करोगे? ठीक है, वो गोल पा लिया तो हायर फोर्ब्स लिस्ट में मेरा रैंकिंग 8th इन द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, उधर तक भी पहुंच गए. एलॉन मस्क को भी क्रॉस कर लिया आपने. उसके बाद क्या करो? फिर बचा नहीं है. एलॉन मस्क भी आपके हाँ सर और पूछ लेगा. उसके आगे क्या करोगे? यस, व्हाट्स योर गोल ऑफ लाइफ? Whenever I ask this question, it's a total blank. यार ये सोचा ही नहीं कभी. What is my goal of life? Yes, माता जी, आपका गोल ऑफ लाइफ क्या? पहले तो मेरा कुछ था नहीं, क्योंकि जैसे घर में होता है कि जितना पढ़ा दिए घर में, हाँ, उतना पढ़ने के बाद जब शादी कर दी, शादी की, फिर बच्चे को बड़ा किया, उसके बाद फिर अपने बारे में सोचा थोड़ा. तो पता नहीं इस वक्त से मैं योगा इंस्टीट्यूट चले गई, भवन से योगा, वहाँ योगा सीखा और अभी उसी में हूँ थोड़ा. और
जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मेरा था ही नहीं कुछ भी ऐसे। आपका ही नहीं, चिंता मत करना, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। यस प्रभु, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। वो लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो जब प्राप्त हो जाएगा वो उसका रिवॉर्ड या उसका, बोलते हैं ना, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, गति, दैट्स द एक्चुअल गति, बट दैट्स नॉट द गोल ऑफ लाइफ। जीवन में आपको क्या प्राप्त करना है? माई क्वेश्चन इज दैट गोल। हु कैन आंसर मी दैट? द प्रॉब्लम इज हम लोग सब इस चीज में अटके हैं कि वी आर नॉट नोइंग द गोल ऑफ लाइफ। एक बात बताता हूं, वी ऑल थिंक प्रायोरिटीज टू बी गोल ऑफ लाइफ। इफ आई आस्क यू व्हाट्स योर प्रायोरिटी, व्हाट्स योर गोल? सर बस डिग्री पा लूंगा, मतलब उसके बाद MBA कर लूंगा, मेरा गोल हो गया। उसके बाद नहीं, उसके बाद नौकरी ढूंढ लूंगा। अच्छा, नौकरी ढूंढने के बाद नहीं सर, फिर मेरा गोल होगा शादी करना। ठीक है, फिर शादी हो गया प्रभु, अभी मेरा गोल है एक बस बढ़िया सा घर लूं, बीवी बच्चों को खुश रखूं एंड यू नो ऑल दैट। फिर अब क्या गोल है? अब बच्चे का एडमिशन ढूंढ रहा हूं। फिर अब क्या गोल है जीवन का? नहीं, मेरा जीवन का अब लक्ष्य एक ही है, बस किसी तरह बच्चे को अच्छी तरह पढ़ा लिखा के उसको अमेरिका भेजूं या कुछ करूं, ऐसा कुछ। आई एम जस्ट गिविंग ए जनरल थॉट प्रोसेस। सो इसको हम गोल मानते रहे हैं, ये गोल रहा नहीं है अपना। वॉट कीप्स ऑन चेंजिंग इज नॉट गोल। गोल कैन बी ओनली वन। दीज आर ऑल प्रायोरिटीज। जैसे अगर कोई बच्चे को जाके पूछोगे, क्या बेटा शादी करोगे? बच्चा क्या बोलेगा? मालूम नहीं, मेरे को चॉकलेट दो। क्यों? उस वक्त उस बच्चे का गोल क्या है? प्रायोरिटी क्या है? उसको चॉकलेट चाहिए। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वही बच्चे जब बड़ा हो जाता है, बेटा चॉकलेट खाएगा? आई वॉन्ट समथिंग एल्स। ओके, दैट्स हाउ priorities change, but we think priorities to be गड़बड़ यहां पे हो रहा है। लोगों ने हमको बोल दिया है ना, you be you know run behind your passion। ये सब बड़ा बड़ा डायलॉग्स आते हैं ना अपने को व्हाट्सएप में, सब आते हैं, रन बिहाइंड योर पैशन। काय का रन बिहाइंड योर पैशन? जीवन भर भागा, कहां पहुंचा? सपोज यू गेट ए जॉब इन अ वेरी बिग कंपनी। At the age of 60, the company will say, bye bye, we don't need you. You are now a senior citizen. Go home and rest. You are of no use to us. But what have you achieved in that whole lifespan? जीवन को सुधारते बनाते बनाते पूरे आयु निकल गई. You have consumed your entire time which was given to you. You made bodily things. What is the use? What is the actual use of time? प्रभु बोलेंगे, sir, I made lot of money, crores of money. Very nice, very good, very nice. Can you carry it along with you when you die? Then what have you earned? Have you earned something tangible? Are you getting this question? अगर आपने बहुत सारी 20-25 गाड़ी ले ली, 20-25 बंगले ले लिए, made everything. When Cyrus Mistry died in the accident, his body was pulled out and kept in the road. That video you all must have seen. You know how much that person was worth of? 3,000 crores. कुछ लोगों को शायद उसमें कितने जीरो हैं वो भी पता नहीं होगा. 3,000 crores. And that's what happened to him. The best SUV he is traveling, and he is, whatever the accident was, we are not debating on the cause of the accident on that, but he was just lying on the road. Was he lying on the road? Was his body lying on the road? जो आत्मा निकली वो क्या लेके गई साथ में? 0 crores. और पूरा जीवन हमारा किसमें चला गया? Now I'll ask you one important question, which I think Nitish will definitely answer.
प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रैट रेस। आप लोग सब है ना, रैट रेस सुना है ना, बोलते हो ना, प्लीज। What is rat race? Race against time. For what? 99% don't know the people don't know the meaning of rat race. R-A-T, race against time. Against time, what race are you running? Can anyone explain me? सुबह उठ के सब लोग भाग रहे हैं, क्यों? और बाजू वाला भाग रहा है, मैं भी भागता हूँ। भाग क्यों भाग रहा है? किधर भाग रहा है? नहीं वो भाग रहा है, क्यों? अरे वो पढ़ रहा है, मम्मी भी आके बोलती है ना, बेटा वो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तू भी पढ़। अच्छा, ध्यान यू रियलाइज, वो मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, इसके लिए पढ़ रहा हूँ। That's what is our situation. अच्छा, why you want to become businessman? क्या है? I seen that person, कोई आइडियल है, एक हाँ रोल मॉडल है मेरे जीवन में, उन्होंने बहुत भिखारी थे, आज करोड़पति हैं, विरार से वाल्केश्वर पहुंच गए। अरे एवरी शेयर मार्केट का बाउट में वी सी 10 people गोइंग फ्रॉम विरार टू वाल्केश्वर, बट वी डोंट सी 100 people गोइंग फ्रॉम वाल्केश्वर टू विरार। दैट नोबडी सीज, ओनली दे सी द, वही दिखाया जाता है ना आपको। And whenever I see, that day I was going for a walk, I saw a poster on the pillar, on some pillar or somewhere. Guaranteed share market earning, guaranteed. मैं बोला guaranteed. कोई लोग बोलते हैं ना, I will teach you how to invest in share market. If you have the secret formula, you will make your own buck, na? Why will you share it with me? And that too for 10,000 and 15,000. That too for 10,000 and 15,000. Why will you give me a secret? अगर आपके पास कोई secret formula लग गया पैसा बनाने का, would you not? I mean, this is the general attitude. Every human wants to get all the money in this earth. Can he get? Suppose it happens. I mean, ideologically it will not happen, but let's say hypothetically it happens. You get all the money in this earth. What will you do? Oh, company who's making the car is also bankrupt now because all the money is with you. You can't live. You can't live. You get out, beggar is standing outside house. Only beggars. Only you all got money. What is the use? The shopkeeper is also a beggar now. Everyone is a beggar. Ideally, means we have, I'm sorry to say, the thought process is so dumb. Our thought process is dumb. We are not, we can't think out what and how it has to be done. That is why our Indian way of thinking was ideal. We were having a balanced approach in life. Time is required for running your daily routine life, जो भी हो, बचपन है, पढ़ाई है, नौकरी धंधा जो भी है वो करो, सब करो. But parallelly, you are supposed to do devotional service also. Why? If devotional service is done, then it is fulfilling the soul. When material things are done, it is fulfilling the body. Both are required. Both are required, right? सबको साधु बनना है? नहीं ना. सिर्फ कमंडल लेके लंगोट लेके चलना है तो बात अलग है. नहीं. तो फिर जीवन में दोनों चीज की जरूरत है. कोई भी एक चीज पे अगर आप ज्यादा वजन दोगे तो दूसरा चीज निकल जाएगा. Now my question is, let's have an experiment. Experiment. Let's say there is a pot. घड़ा है अपने पास. घड़े में हमने थोड़े बड़े पत्थर डाले. समझ 5-6 पत्थर गए, घड़ा फुल हो गया. बट उसमें जगह काफ़ी है. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा फाइन सैंड, रेत जो है वो भर देते हैं. जाएगा, बस इन बिटवीन गैप है. और उसके बाद ना वी पुट वाटर इन इट, कि रेत के कण के बीच में भी जगह है तो वहां पे पानी जाएगा. नाउ 3 चीज से भरा हुआ घड़ा. नाउ लेट्स डू द सेम एक्सपेरिमेंट इन द रिवर्स मैनर. पहला
पानी भरते हैं, फिर रेत भरते हैं और फिर उसके ऊपर बड़े पत्थर डालने की कोशिश करते हैं, क्या वो बैठेगा? पानी बाहर जाएगा या रेत बाहर निकलेगा? अब वो फिट नहीं होगा। What do we learn from this experiment? लोग अक्सर आके कहते हैं भक्ति तो बुढ़ापे में करने वाली चीज है, जवानी में नहीं। All things have to go in place in time. समय होते हुए आपको करना पड़ेगा। You can't choose a period when you will do it. First and foremost, क्या कोई गारंटी है कि कल सुबह तक कोई जीवित रहने वाला है? What to talk about 10 years? तो वक्त किसके पास कितना है पता नहीं। सेकंड, बुढ़ापे में कितने लोगों को गारंटी है कि शांति से वो भक्ति कर पाएंगे? Do you think? या कितने लोगों के पास गारंटी है कि उनके पास शरीर उतना फिट रहेगा कि भक्ति कर पाएंगे? आजकल 40 की उम्र का व्यक्ति को चश्मा पहनना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, 30-40 की उम्र में। आई एम टॉकिंग ऑफ एवरेज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, see that's a different category. We are not trying to downtrod someone, but I am trying to say is how body is becoming weak. A 40-year-old or a 50-year-old person has to use specs to read something sensible. Without that, how can one at the age of 60 or 50 you think he can start his devotional life? Can he do? It's impossible. We have got so many ailments, health problems at this age itself. What you will going to do at that age? एक ग्लास पानी के लिए भी किसी पे मोहताज रहेंगे, उस वक्त आप पढ़ने निकलोगे? इधर एक कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है। अच्छा, इतने दर्द में क्या आप भगवान के बारे में सोच भी पाओगे? People generally come and tell me, sir, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए. My wife always says, she tells, once one doctor was telling her, मैडम अभी तो it's my making my career का टाइम है, बुढ़ापे में करना चाहिए. तो she gave an answer. MBA कब करना है, किस उम्र में करते हैं जनरली? 30-35. Okay, generally after 2 years of job only you can go for apply for an MBA also. You need a job experience also generally. Suppose at the age of 25 MBA करना है, तो अब क्यों स्कूल में जाना है? अब स्कूल में जाने की जरूरत है क्या? पोस्ट डिग्री ग्रेजुएट के बाद जो भी मास्टर्स जो भी करना है वो तो 20 साल के बाद ही करना है ना. 20 साल के बाद तुम आपको मास्टर्स का डिग्री तो लेना नहीं है, तो तब पढ़ लेंगे. अब पढ़ने की क्या जरूरत है? That is why Acharya say, life is a preparation, death is an examination. जीवन एक तैयार करने के लिए दिया गया आपके लिए एक रिसोर्स है. लाइफ इटसेल्फ इज अ रिसोर्स. उसमें शरीर दिया है आपको, वक्त दिया है, एंड इफ यू डोंट यूज टाइम प्रॉपरली you are missing out on it. You are missing out on it. That should be equal distribution. Just imagine आपके थाली में सिर्फ मिठाई हो. क्या आपको मिठाई पसंद है? रसगुल्ला, चमचम, इमरती, ये वो सब दुनिया भर की सब मिठाई हो, मजा आएगा? You need something चटपटा, something तीखा, something नमकीन and some मीठा. Then it is called as a balanced food. बट वॉट वी आर डूइंग, अगर कोई व्यक्ति का आके आपका प्लेट में से मिठाई निकाल के बाजू में रख दे, बाद में खाने वाली चीज़ है, वाकई में बाद में खाने वाली चीज़ नहीं, बाद में खाने वाली चीज़, आपको 10 साल बाद दूंगा, चलेगा? जीवन के साथ साथ, थाली के साथ साथ वो भी खा रहे हो ना, उस मिठाई को भी खा रहे हो. उसी तरह जीवन जीते जीते भी आपको भक्ति करनी है. बिकॉज आत्मा तभी जागृत नहीं होती है, आत्मा अभी भी है आपके पास, तो अभी भी आपको उस आत्मा की खुशी के लिए भक्ति करनी है, अभी भी और बाद में भी. बाद में क्या फायदा क्या है? आप बचपन में थोड़ा पढ़ लिए हो तो बाद में आपको MBA करने में या कोई भी मास्टर्स डिग्री करने में आसानी, सहूलियत हो जाती है. सिमिलरली व्हेन यू विल स्टडी, व्हेन यू विल डू योर डिवोशन, बेसिक प्रैक्टिस राइट नाउ,
at old age you can be more peaceful, you can be more happy, because this whole life you are only suffering. You go and ask anyone with the hope that he is going to be happy in the future. He is rotting now. How do you feel when you are going to prepare for your examination? When you were in the 10th standard, what will your parents say? बेटा 10वीं पास कर, बाद में जिंदगी ऐश, मजे ही मजे, क्या का मजे. फिर 12th में आए, 12th में बैठे, तो बेटा 12th का एक बार लास्ट है, ये क्लियर करेगा, मजे ही मजे. फिर गए कॉलेज में, गए कॉलेज का पढ़ाई किए, पर टीवाई किया ना, बाद में मजे ही मजे. फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, बाद में क्या नौकरी, लड़की की लाइन लग जाएगी. वो दिखा के ना, कैरेट दिखा के, और हमारा भी हालत वही है. whenever I go for corporates, I give one story. एक बार है ना, हम लोग को जीवन भर है ना कैरेट दिखा के हम लोग जीवन का हर पड़ाव चढ़ते गए. शादी, खुश रहूंगा करके शादी की. काफी एक्सपीरियंस लोग हैं. इनएक्सपीरियंस आर वंडरिंग, अरे वाह, हम तो सोचे थे कि करेंगे तो खुश रहेंगे. चलो उसके बाद नेक्स्ट कैरेट, नहीं अभी बच्चे होंगे ना, जीवन में चहल पहल आएगी. ठीक है, जो बच्चे आ गए, उसके बाद अभी उनको पढ़ाई करोगे, बाद में आराम. बस एक बार उनकी शादी कराओगे, घर में बहू आ जाएगी, पैर दबाएगी. वो क्या दबाती है, गला दबाती है कि पैर, वो पता नहीं है. बट एक्सपेक्टेशन फॉर द next level of our life by which we are pulling. So I always give this example. धोबी का गधा होना जरूरी रहता है. हमेशा हर कहानी में एक धोबी और एक गधा रहता है. तो एक बार एक धोबी का और गधा था. रोज बेचारा धोबी उस पर कपड़े लाद के लेके जाता था. गधा जाता था नदी के किनारे, कपड़े धो के, धुले हुए कपड़े, मतलब गीले कपड़े उसके कंधे पे डाल के. बेचारा गधा परेशान, बट काम करता था. तो उसका गधे का एक फ्रेंड था. गधे का फ्रेंड गधा ही रहेगा, सिंपल. देयर इज नो पॉइंट्स इन गेसिंग दैट. ओके, देयर इज नो मार्क्स फॉर गेसिंग दैट. तो गधा आया, बोला तू गधा है. ही सेड तू गधा है. बोला अच्छा मैं गधा हूँ, व्हाट यू से, ओके नहीं इंसल्ट मी लाइक दैट. नहीं सी व्हाट यू आर डूइंग, फुल डे यू आर वर्किंग लाइक ए डोंकी, एंड इन द एंड व्हाट यू गेट, some grass, correct? This grass is freely available in the river bed. नदी के किनारे ये घास फ्री में अवेलेबल है. इसके लिए तू इतना गधे जैसा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है. बोला नहीं, तू मत सोच ऐसा. आई एम ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. तू गधा हो सकता है, मैं नहीं हूं. यू आर अ लेजी गधा, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन. बोला कैसा? सी कल ही वो 2 दिन पहले ही मेरा मालिक अपनी बेटी को डांट रहा था. बोला तू ऐसी ही करती रहेगी ना, मैं इस गधे से तेरी शादी करा दूंगा. सो दिस इज आवर सिचुएशन. जीवन भर हम एक कैरेट लेके आगे बढ़ रहे थे कि भाई उस गधे की तरह ही हम लोग भी कभी ना कभी वो मालिक की बेटी मिलेगी, इसके चक्कर में काम कर रहे. सो इट्स नॉट, इट मे साउंड एज ए जोक, बट द फैक्ट इज वी आर स्लॉगिंग थ्रू आउट अवर लाइफ only for some betterment in the future. But mind you, कितना भी मेडिकल बढ़ जाए, कितना भी मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, सब बढ़ जाए, डेथ इज गारंटीड 100%. मृत्यु से कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता. और द ट्रेजेडी इज, आपका मृत्यु तय है, मगर आत्मा कभी मरती नहीं है. आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है. तकलीफ यह है कि जाते वक्त कर्मों का बोझा लेके दूसरे शरीर में जाती है, और वहां जाके तकलीफ उठाना पड़ता है. वापस A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल से पढ़ाई करना पड़ेगा. तो इस झंझट से निकल जाना अच्छा है. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग कमिंग इन अ स्पिरिचुअल लाइफ. स्पिरिचुअल लाइफ में दूसरा बेनिफिट ये है कि यू नो हाउ टू लिव लाइफ लाइक ए ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक एन एनिमल. आजकल जो खासकर जो ट्रेंड चल रहा है ना, रात को 2 बजे तक जागना, सुबह 9 बजे तक सोना, these are all nice, animals do like that.
देखा कभी कुत्ते को रात को देखा? आँख पूरा एकदम चमकता रहता है, पूरा जागते रहेगा. So it is better that we take up a human process of life rather than an animal process of life. Last one story I will tell you before I close today's session. This is from the Bhagavatam, where it is said Maharaj Khatwang, he was fighting for the Devatas. He was a very great powerful king. बहुत बड़े महाराज थे. And he was so powerful that देवता उनको इनवाइट करते थे कि भाई हमारे तरफ से आप युद्ध लड़ो. असुरों के साथ युद्ध लड़ रहे थे. तो ऐसा हुआ कि युद्ध काफ़ी समय तक चला और एंड में कार्तिक भगवान, कार्तिकेय जो थे वो आए. ही वॉज द सेनापति ऑफ द सुरास, दैट इज देवताओं का सेनापति था. तो वो आए तो उन्होंने बोला अब आई विल टेक ओवर, आप रेस्ट करो. तो खटवांग महाराज बोले ठीक है, आई विल टेक रेस्ट, बट आप जा सकते हो, आपको क्या चाहिए बोलिए. आपने इतना युद्ध किया, इतना मेहनत किया हम लोगों के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार. भाई आप लोगों को पूछा गया तो क्या करोगे आप? हेवन में हो, किस अप्सरा को मांगोगे, किसके साथ नाचना है, क्या खाना है, यही सोचोगे ना आप लोग. बट महाराज खटवांग was intelligent. He immediately asked the devatas, मेरे पास कितना वक्त बचा है? What did he ask? मेरे पास कितना वक्त बचा है? Devatas had the power. They said आपके पास सिर्फ 2 घड़ी का समय बचा है. You just got 2 घड़ी, मतलब it is more than 2.5 hours as per the demigods calculation. तो बोला 2.5 hours टाइम बचा है. बोला इतना ही टाइम बचा है? He didn't say अब मुझे अच्छा रेस्ट करना है, मुझे आराम करना है. He just kept his weapons down and he went and started doing devotion. He was in perfect time management. He knew whatever time was left, he wanted to utilize it in the correct manner rather than wasting it on time pass. हम लोग क्या कर रहे हैं? जीवन का टाइम पास कर रहे हैं. वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू गिव अस एनी प्रोडक्टिव यूज. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर ऑल स्मार्ट इनफ, आई मीन एटलीस्ट दिस होल क्राउड व्हाट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी स्मार्ट इनफ टू allocate the right time gap or the time slot for each and every activity, be it studies, work, play, whatever it is. But please add this important slot, and if you are saying yes, please understand time management का एक बहुत बड़ा fundamental principle है. If you say yes to something means you will have to say no to something else, because I told you this resource is fixed, only 24 hours, 24 घंटा है. तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कटौती करना पड़ेगा. जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रभु जी मंदिर आते आते प्राण निकल जाते हैं, इतना ट्रैफिक है, 1 घंटा तो वही टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टिंग इन योर टाइम. इन्वेस्टिंग योर टाइम, माइंड यू, एवरीथिंग यू नीड टाइम. इफ यू वांट टू डू बेटर बिजनेस यू नीड टाइम फॉर दैट. बट सेम वे इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर योर सोल, प्लीज टेक आउट टाइम फॉर योर डिवोशनल लाइफ. हरे कृष्णा. Anybody has got any doubts, questions, can ask. किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ